Okay. So yeah, just have a brief of this present syllabus, present week syllabus, children. Okay. See, note it down fast. Be fast. Some basic concept in chemistry. Okay. Yes, sir. Write down Dalton's atomic theory. First chapter. Yeah, some basic concept in chemistry. All are the topics related to first chapter. Yeah, now see, after doing so many chapters, we came back to the first chapter. But I have given you the skill 1 and skill 2. Okay, these were all Yes, are sir. related to some base. So Yes, sir. yeah, just only it is a kind of formality. Everything I have discussed earlier. Okay. Yes, sir. Yeah, so come on, don't waste time, be fast. Some basic concept in chemistry. Okay, so first of all, you should know about Dalton's atomic theory. Dalton told that all matter is made up of tiny particle, and that tiny particle is that ultimate particle is known as atom, and atom cannot be further, the atom cannot be further divided. Okay. Sir, after Yes, sir. Dalton's atomic theory, what you written? I have written AMU, so that also I have told you what is AMU. Atomic That mass. 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. Did you Yes, remember? sir. And Yes, I Yes, told you about sir. Yes, sir. precision Yes, and sir. accuracy, and that you know that significant figure. Yes. I think day before yesterday or somewhere we discussed Yes, significant figure. sir. So there is no problem at all. And then law of chemical combinations. So law of chemical combination we have to do. It is very easy. Already we know all. Just we have to, in a formality, we have to put it down. Okay, note it Yes, down. sir. So law of chemical combination, and then atomic weight, molecular weight, all you know how to calculate. And then you know Yes. the molar weight. Now molar weight has so many terms. Style, Yes, sir. GAW, GMW, gram molecule, gram atom. Okay, gram atomic weight, gram molecular weight, all are same. So for simple this thing, for simply molar weight, so many things they are using. What we can do? Okay, Yes, sir. so you have to Yes, remove sir. the unnecessary stress. Okay, now we have to, and again after that we have to do some calculation which is related to weight and weight, weight and volume, volume and volume, everything. So Yes, sir. Excuse me. yes, then we have to identify limiting reagent and excess reagent. Now, what is this limiting reagent, excess reagent? And then we have to know the percentage composition of mixture. So everything we will do, children. Okay, everything will do. Yes. So when the law of chemical combination works, law of chemical combination works when element and element form what? Compound. So now you know already what is element, homomolecule, element, homomolecule. What is Yes, sir. compound? Heteromolecule. Okay. Heteromolecule. Yeah. Yes, sir. Everything is familiar to you. So law of chemical combination means when element and element combine with each other to and form compound, they follow a set of rules. That set of rule is known as law of chemical combinations. So what are they? Yes, sir. So first of all, you should know that there are 5 important laws, 5 important laws related to this. And what are they? Yes. So law of conservation of mass, okay, Mass. law of definite compositions, law of multiple proportions, law of reciprocal proportions, and then Gay-Lussac's law of combining. Gay-Lussac's law. You can use only this much also. But Yes, if you have sir. learned Gay-Lussac's law, at least that term is familiar to you, then you can use of combining volumes of gases. Of gases. Did you understand? Yes, sir. Okay. This will be worked out here. See here they have given volume and volume. Okay. So Yes, under sir. this situation, Gay-Lussac's law will be working. Okay. So see now let me start. And here only Avogadro's law is there, which is somehow related with Gay-Lussac's law. Okay. So Yes, sir. don't worry, I will explain each and everything.
Okay, and one more important information is that Einstein equation. You know what is Einstein equation? E equal to mc E square. is equal to Yeah, MC square. mass can be converted into energy. Okay? Mass can Yes, be sir. converted C is a into constant. energy. Energy. So yeah, so if we find some problem in mass, suppose first law of conservation of mass is not followed, left hand side mass and right hand side mass are not same, then you can understand that the remaining mass is converted into energy, but the possibility of that is very less. Okay, 0.2%. Did you understand, children? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 99.8% we will use for law of conservation of mass. The mass of left hand side and right hand side will remain constant. In another word, we can say the total mass of the reactants and the total mass of the product always remains constant, always Constant. remains same. For an example, calcium carbonate heating gives you carbon dioxide and calcium oxide. So we can say, we can read this equation in this format. I told you, whenever a molecular formula is given, there are three boxes. One is in right hand side top, one is in right hand side bottom, and one is in left hand side. This will tell you about oxidation number. So when you really require oxidation number, then only you have to use it. Otherwise, Can you scroll up once? Yes, sir. थोड़ा सुन लिया करो ना यार, थोड़ा जब सुन रहे हैं तो बोल रहे हैं, थोड़ा 1 मिनट का पेशेंस तो रखो। Okay, sir. समझ रहे बात को? अब बताओ, मैं भूल गया ना क्या बोलना चाह रहा था। ठीक है, भूल गया अब मैं। The right hand side में atomicity है. हाँ, यस, ओके। सो कैल्शियम में देखो फॉर्मूला यह रहेगा, तो राइट हैंड साइड में अपर बॉक्स ऑक्सीडेशन नंबर, इफ रिक्वायर्ड वी विल यूज, नॉट रिक्वायर्ड विल नॉट यूज. Right hand side bottom, it will require atomicity. If it is required, we'll use, otherwise will not required. Left hand side will give you about number of particle or number of moles. If we required, we will use, otherwise we will not use. Yes, sir. And we already we have done the flow chart of mole concept. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If this flow is telling that once you able to manage to know the value of n, number of mole, you can know about number of particle, you can know about the weight, you can know about the volume. This is volume, this is weight. Okay, this is number of particles. Okay, children. Yes, sir. Yes, sir. So now we will use, एकदम जाएंगे एकदम अच्छा से, एकदम थोड़ा जल्दी भी चलेंगे अब, क्योंकि अब मैंने बहुत बढ़िया से बेसिक वे से समझाया है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ो भाई, गाड़ी को स्पीडली थोड़ा सा लेके चलो। तो अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और सीधी बात करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम लोग पढ़ सकते हैं, इसको हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं। देखिए इसको हम, इस रिएक्शन को ऐसे पढ़ सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, when we heated calcium carbonate, I got calcium oxide and calcium dioxide. It is a gas, it is a solid, it is a solid. Now again I told you that whenever a formula is given to you, there is a left hand side box. Whenever a formula is given to you, there is a left hand side box. When a formula is given, there is a left hand side box. This will give you about the number of moles. It will give you idea about number of moles. Number of particles. Nothing is written means one is written. Nothing is written means one is written. Nothing is written means one is written. So I can read this equation in this form, that 1 mole of calcium carbonate when heated, okay, will give you 1 mole of calcium oxide and 1 mole of carbon dioxide. Can I read or not like this? Yes, sir. अच्छा, जब मेरे को मोल पता चल जाता है, तो I can read in form of weight also. So I Yes, can tell like yes, this, sir. yes, one Yes, mole of sir. calcium carbonate. Simultaneously you keep on calculating like this, calcium, carbon, oxygen, everything. If you add up, you will get that 100 gram of calcium carbonate, okay, when heated, you will get 56 gram of calcium oxide plus 44 gram of carbon dioxide. And once you see minutely, you will see that 100 gram and here 100 gram, both are same. Yes, sir. Okay, Sir. why this rule is given to you?
this rule is given Law to of you that, conservation of yeah, mass. by mistake, suppose you don't know what is the mass of carbon dioxide form, because it is gas, it can be eliminated, it will escape from the system, okay, and you will be, Yes, sir. yeah. Yes, sir. Here we can say that if it is 100 gram and Sir, we can you know scroll that, up? अरे ये कौन ये भाई, नाम बता तू. My humble request is there. कौन है बेटा? Scroll up, बोलो बेटा. कौन हो? सुप्रिया? No, sir. Okay, कृतिका? Somojit. सौम्यजीत रॉय? Yes, sir. Okay, right. Okay, sir. Okay, That sir. is recording. अरे हाँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी याद दिलाया मेरे को. रिकॉर्ड हो रहा है. हाँ. रिकॉर्ड हो रहा है तो. ओके ओके ओके. ये कौन है? अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ. ओके मे बी, चलो लगभग मैंने सबको अनम्यूट करके ही रखा हुआ है, तो सब लोग बात कर सकते हैं आपसे. तो देखो देखो देखा, मैं फिर भूल गया मैं क्या कर रहा था. कौन स्क्रॉल अप करने बोला? 100 gram. यस 100 ग्राम. ओके कार्बन एक्सट्रैक्ट या का वो कार्बन वाला. डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस था, वो निकल गया. खाली मेरे पास Yes. बचा कैल्शियम ऑक्साइड. तो ये तो पता चल गया कि ये था. अब कोई पूछे कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड कितना उड़ गया, 100 कितना उड़ minus गया, 56. तो हम लोग के पास लॉ है, वो बोल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड का वेट और राइट हैंड साइड का वेट हमेशा सेम होता है. तो मैंने 100 से 56 को निकाल दिया, तो बच गया 40 ग्राम. 100 minus 56. एकदम बढ़िया से हंसते हंसते बोल सकता हूँ कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एस्केप. डिड यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? Yes, sir. Yes, sir. ओके. Sir, before doing this, we have to balance the equation. Sir, once again repeat. ओके. Yes, sir. Explain from the beginning. We have joined late. ओके ठीक है ठीक है. तो ठीक है, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा. एक कहाँ इतना ऐप ब्लॉक सब कहाँ से आ गया बाबा, इतना मेरा स्क्रीन में लिखा हुआ रहता है. ওই রুমান সোফা থেকে একটা বই দে তো, কেমিস্ট্রি বই আছে. এখানে এখানে আছে वही कहता है जो एखने कोई আছে भी हो बाबू. उसे म्यूट कर दीजिए. हाँ. कहाँ पर रखा है बॉय बाबू? कौन था? आपने उठ के लेके आओ ना, दूसरा क्यों देगा तुमको? ये इरेज क्यों नहीं हो रहा अभी? बहुत प्रॉब्लम मेरी लाइफ में. तावला बाजी रे वो. স্যার আপনি বাংলা কথাটা জানেন? আরে আমি বুঝতে পারি কিন্তু বলতে পারে না. বাংলা কথা আমি বুঝতে পারি বাবু, কিন্তু বলতে পারে না. But I will learn within these 2 At past. I will learn within these 2 years. But first thing is that why I am not able to erase it. Any technician can help me. Oh my God. This is chemistry class, sir. सर कल का वीडियो कहाँ है? अरे रुको, मैं अभी मिटाने तो दो. अभी पे ध्यान दो. ये मिट रहा है, ये वो पार्ट Yes, sir. मिट रहा है, Meet रहा है. ये वो पार्ट मिट रहा है जो मैंने आपने क्या अभी मीटिंग लिखा. सडनली क्लोज कर दिया था? नहीं, मेरा मैम ने बोला था ना कि मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, ट्रैवलिंग. तो उस समय मैंने कहा था ना कि जैसे ही इसका चार्ज खत्म हो जाएगा बस क्लास खत्म हो जाएगा. चार्ज खत्म हो गया, उस समय क्लास खत्म हो गई. Class भी खत्म. Sir. अब नहीं होगा क्योंकि अब मैं आ गया हूँ. अब मैं वापस आ गया हूँ. तुम लोगों को पता चला मैं इतना दिन कितना ट्रैवल करके आ गया हूँ. No, sir. Sir. तो अब देखो रिया, सर लॉकडाउन में आप ट्रैवल कैसे किए? इसके लिए है अलग से, हमको एक टाइम दो, मेरे को बताऊंगा पूरा. बहुत मजा पास है. से जगह जगह मेरे को पकड़ा, क्वारंटाइन, ये वो, कभी कोई स्टैम्प मार रहा है, कभी कोई थर्मामीटर लेके चेक कर रहा है, कोई क्या कर रहा है. फिर भी मैं क्लास लिए जा रहा हूँ, मैं लिए जा रहा हूँ.
हाँ बेटा ये इरेज नहीं हो रहा, थोड़ा देखो क्या प्रॉब्लम है। देखो ये पेन से इरेज नहीं हो रहा, ये आ जा रहा है, ये वाला ठीक है। इसको लेके वो करने से इससे दूसरा टाइप से इरेज हो रहा है। ये आ जा रहा है सेटिंग में प्रॉब्लम है। लिखा गया है इरेज करने के लिए ये यूज करते हैं। ये चीज आ जा रहा है। क्लास अंते तो हाँ देखो बेटा जो लेट ज्वाइन किए मैं उसके लिए बता देता हूँ। और अब मुझे करना पड़ेगा म्यूट सभी पार्टिकल्स को। Yes, sir. यस सर, हम लोग लेट ज्वाइन किए। अब देखो हम ये बोलना चाह रहे थे कि फॉर एग्जाम्पल तो आज हम लोग एक्चुअली लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे हैं। उसमें एक पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो बोलता है लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का जो वेट होता है हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओके Yes. बस इतना ही बता रहा। जैसे कि एग्जांपल देखो, अब मान लेते हैं नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। Yes. अब आप इसको बैलेंस कर लो तो 2 नाइट्रोजन इधर है 6, तो इधर में आपके पास आ गए 3। जहां कुछ नहीं लिखा रहता वहां 1, जहां कुछ लिखा है तो लिखा है बस। अब आपको मोल मिल गया ना, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मोल ऑफ अमोनिया। चलो इक्वेट करके प्रूव करके दिखाओ कि ये लेफ्ट हैंड साइड का वेट और राइट हैंड साइड का वेट सेम है। जल्दी करो जल्दी करो। नाइट्रोजन का 1 मोल का वेट कितना होता है, 28 ग्राम। Yes, sir. और हाइड्रोजन का 1 का होता है 2 ग्राम और 3 है तो 6 ग्राम। Yes, sir. अच्छा अमोनिया का 1 का 9, 14 3 17, 17 और 2 34 ग्राम। 19. अब हमको चेक करके बताओ कि ये लॉ सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। देखो तो 28 को 6 से जोड़ो कितना आ रहा, 28 प्लस 6 सर ग्राम सही है, सही है। 34 ग्राम और इधर में भी 34 Yes, ग्राम। sir. तब आप बोल दीजिए सही है। यस दिस लॉ इज वर्किंग। समझ में आया बात? Yes, sir. ओके Yes, इसका sir. क्वेश्चन सब कैसे आएंगे ना, खाली आप पहले सीखते जाओ तब ना हम क्वेश्चन सब बनाएंगे अभी। Yes. तो Sir, this also we retain in copy. No, no. बकायदा मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। आराम से बैठ के पूरा नोट्स बनाओगे, एकदम एक एक रोक रोक के पूरा लिखोगे। हेलो ठीक है? सर। हाँ सर वो केमिकल बॉन्डिंग सारा टॉपिक खत्म हो गया। नहीं ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा। सर वो आप नारायणा का मॉड्यूल से उसका क्वेश्चन आंसर्स भेज देंगे। हाँ भेज देंगे। मतलब ना खत्म एक्चुअली देखा जाए तो थियोरेटिकली ऐसे बोलने के लिए मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, लेकिन थोड़ा क्योंकि मेरे उसको कंप्लीट करने के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए मैं उसको भी तो डिस्कस करते रहता हूँ ना। Yes, sir. यस सर। मतलब मेरा थोड़ा सा स्टाइल क्या है पढ़ाने का, क्या है बोलो।
चेंज है। अलग थोड़ा अलग है, अलग है सर। डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मैं सिंपली, मेरे को Yes, मालूम sir. रहता है कि पढ़ाना ये है, तो मैं उससे पहले पूरा काम करके अपना होमवर्क करके रेडी रखता हूँ कि मेरे को उसमें जो पढ़ाना होगा तो उसमें कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो पहले जरूरत पड़ेगी। हेलो, समझ में आई बात? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. हाँ, तो तब मैं शुरू करता हूँ वो सब चीज को। हालांकि मैं बता देता हूँ बच्चों के दिमाग में, वो मैं डाल भी देता हूँ कि वो काम करे, फिर बता देता हूँ कि यही वाला चीज था, अरे ये तो मेरे को मालूम था, वही तो बता रहा हूँ, ऐसा सिचुएशन आता है। तो Yes, sir. हाँ, तो इसलिए मैं ये वो वाला डॉक्टर नहीं हूँ जो हार्ट खोल दिया उसके बाद पता चला अरे ब्लड लेके आओ, तो अरे वो लेके आओ, तो अरे वो लेके आओ। ऐसा नहीं, सब पहले रेडी करके रखो, तब किसी का हार्ट को खोलो रे बाबा। यस सर। तब तो कहने का मतलब एक टॉपिक खोलना मतलब हम लोग के लिए एक हार्ट सर्जरी करना जैसा चीज है। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट रूल इज, नेक्स्ट रूल, ओके, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। डेफिनाइट प्रोपोर्शन, ठीक है। और लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ समझे? ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह, पहले इस्तेमाल करो, फिर पहले इस्तेमाल करो, फिर क्या करो? विश्वास करो। विश्वास करो। तो ये जो एग्जाम्पल देता हूँ ना, इसको कहते हैं पहले इस्तेमाल कर लो, फिर ऑटोमेटिक तुमको लगे कि नहीं एकदम ये सही जा रहा है, तब उस लॉ के बारे में बोलो, तो हम उसका लैंग्वेज आपको लिखा देंगे। समझ गए बात को? यस सर। तो ये लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन क्या बोल रहा मालूम है? ये बोल रहा है कि ये वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर है। अब आप बोलेंगे ले सभी तो वाटर, इसमें कौन, हाँ इसमें इतना लिखने का क्या दरकार है? मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो वाटर है ना, इसका सोर्स है, मान लेते हैं इंडिया, ये इंडिया का पानी है। यस। ये वाटर कहाँ से आया? तो मान लेते हैं रेन से आया है। कैंट। क्या बोला बेटा? सर कैंट का पानी। कैंट, वाह, वेरी नाइस, ठीक है। सबसे शुद्ध पानी। चलो, हाँ, तो बिस्लेरी लिख लो, एक्वा रेगिया लिख लो। कौन सा मूवी में बोला एक्वाफिना है? हाँ सर। हाँ, वो 5 रुपए का बिरयानी खाता उसको पूछता है एक्वाफिना है, ठीक है। फिर वो बोलता भी है कि कैसा दुकानदार है, इसको एक्वाफिना नहीं मालूम, फिर बोलता पीने के लिए पानी है। तब वो देखो कैसे लैंग्वेज में आता है। यही मेरे केमिस्ट्री में चलते रहता है, वही चीज फिर वो बोलना पड़ता है उसको, भैया पीने के लिए पानी है, तो एक्वाफिना एक्वाफिना बोलते रहता है, तो समझ में नहीं आता है। अब गांव देहात में जा करके तुमको प्यास लगे रहेगा, तो वहां पर तुम क्या बोलोगे बताओ? वहां जाके बोलोगे कैन आई हैव सम अमाउंट ऑफ एक्वाफिना? नो सर। सारा सब गरीब आदमी लोग पैर में गिर जाएगा, क्या मांग रहे हो हे प्रभु, क्या मांग रहे हो, क्यों तड़प रहे हो, क्या मांग रहे हो? एक्वाफिना। बाप रे, सब लोग पागल हो जाएगा। फिर बाद में पता चला, पानी देखकर तुम बताया कि हमको ये चाहिए, तो आप बोला ओहो जल खाबे दादा, अपने की बोलचे रे बाबा, है कि नहीं? तो बात एक ही है। और लाओ वाटर कहाँ से लाओगे बोलो? मान लेते हैं केमिकल रिएक्शन से वाटर लेके आ रहे हो, कोई केमिकल रिएक्शन में भी तो वाटर बनता है, एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। यस सर। हाँ कि ना? यस सर। ओके, और वाटर कहाँ से लाओगे? कुछ इंडिया से बाहर लाओगे, अमेरिका से लाओगे? क्या का पानी, हाँ, ये जमीन से खोद करके निकाल लो, अंडरग्राउंड वाटर। याद रखना है कि हमको ये करना है कि सब में से प्योर वाटर निकालना, मतलब उसमें ये मान के चलते हैं कि इम्प्योर कोई चीज नहीं है, सब लोग वाटर है। ओके, हेलो? ओके सर। यस सर। हाँ, बरसात में भी आप खाली प्योर वाटर को कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ओके सर। तो ये क्यों ऐसा, ये बहुत, ये मालूम है ना मेरे को, बहुत मेरे 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 मन में तो करता है कि इस लॉ को देना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर करता है चलो अब दे दिया है तो पढ़ा देना चाहिए। ये क्या बोल रहा मालूम है? ये क्या सोच के दिया था? ये क्या सोच के दिया था? हम आपको बताते हैं क्या सोच के ये लॉ को देना पड़ा। जैसे आपको मालूम है मैंगो होता है। यस यस सर। मैंगो मतलब आम हो गया। लेकिन अब आप देखो आम में
अलग अलग प्रकार का आम होता है कि नहीं बताओ? Yes, sir. Yes, sir. देखा है कि नहीं? रियल लाइफ में देखा है कि नहीं बताओ? देखे हैं sir. देखे हैं सर. रहते हैं आम लेकिन अलग अलग टाइप का है. कैसे? क्योंकि कहते हैं कि अलग अलग जो एटमॉस्फेयर होता है, अलग अलग जो लैंड होता है, उसके हिसाब से उसका इफेक्ट होता है. कोई कहाँ का आम, यहाँ का आम अच्छा होता है, वहां का आम अच्छा होता है, लाइक दिस. तो इस तरह से जब अलग अलग एक ही चीज का बहुत सारा वैरायटी मिलने लग गया तो उस समय केमिस्ट्री में भी प्रॉब्लम आ गया था. सब आम है लेकिन अलग अलग टाइप का है. कोई मीठा लगता है, कोई येलो देखने में लगता है, कोई हरा देखने में लगता है, कोई लाल देखने में लगता है. तो हल्का चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंगो लेकिन देयर इज सम चेंज. Change. मेरा बात समझ में आया? मैं किस और जा रहा हूँ? Yes, sir. हाँ, तो ये चेंज क्यों आया बताओ? चेंज क्यों आया? Environment. एनवायरमेंट, जमीन, Yes, sir. बीज, फलाना ढिकाना, क्या क्या चीज के ऊपर. सो मीन्स दे थॉट दैट वाटर आल्सो, like this is water from India, so it will be of different type. Water from rain, it will be of different type. Water from aqua, it will be different type. और ये कहा केमिकल रिएक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप. अमेरिका से पानी लाया हुआ है, इतने लोग गोरे गोरे होते हैं, पता नहीं वहां के पानी में ऑक्सीजन ज्यादा होता होगा. समझ गए? वेस्ट इंडीज में वहां पर हो सकता है ऑक्सीजन कम होता होगा वहां का पानी में. ऐसा बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम सब आने लग गया था. तब किसी सीनियर साइंटिस्ट को आगे बोलना पड़ा कि चाहे वाटर कहीं का भी हो, चाहे जमीन से खोद के लाओ, चाहे ऊपर से बरसाओ, चाहे एक्वाफिना लो, चाहे केमिकल रिएक्शन लो, चाहे अमेरिका से लाओ, चाहे इंडिया से लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. समझ में आया बात? Yes, sir. इसको बोलना पड़ा क्योंकि कुछ ऐसी चीजें थी जहां पर फर्क पड़ता था, जहां पर फर्क पड़ता था फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. बहुत सारी चीजें थी लेकिन वो चीजें थी. बट हियर वी आर स्पीकिंग अबाउट ए कंपाउंड. सो H2O इज ए कंपाउंड, वाटर इज ए कंपाउंड. सो इस लॉ को क्या बोलना पड़ा कि ओके बोलना पड़ा फ्रॉम ये लॉ क्या बोला? इट्स जैसे वाटर है तो Yes, sir. हाँ, इट्स कॉम्पोजिशन इज सेम. एलिमेंट के हिसाब से, मतलब वाटर के अंदर कौन प्रेजेंट है? वाटर है, हाइड्रोजन एंड Oxygen. Yes. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो बोलना पड़ा कि कॉम्पोजिशन इज सेम या कॉम्पोजिशन ऑलवेज रिमेन सेम. एकदम ऑलवेज बोलने से मतलब और जोर दे के बोल रहे हैं. द कॉम्पोजिशन ऑलवेज रिमेन सेम, ऑलवेज. Sir, मतलब hydrogen और oxygen का. या नहीं, पहले तो कंपोजिशन देखो कि इस कंपाउंड में कौन है. कंपाउंड में H2O में Oh, H2O sir. Yes, sir. हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है. तो एक तो एलिमेंटल कंपोजिशन, मतलब एलिमेंटल Okay, कंपोजिशन sir. इज ऑलवेज रिमेन सेम. मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया का पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और अमेरिका का पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ गोल्ड भी मिला हुआ है. Yes. ऐसा कुछ भी बात नहीं है. समझ में आई बात को? Yes. हाँ sir. हाँ, और इतना ही नहीं, एक तो ये हो गया उसका एलिमेंट का कंपोजिशन, और दूसरा एलिमेंट का कंपोजिशन में जो उनका वेट का जो कंपोजिशन है, वेट कंपोजिशन इज ऑलवेज सेम. मतलब ये बताया है क्वालिटी मतलब क्वालिटी मतलब कौन कौन से एलिमेंट है, और ये बता रहा है दूसरा उसका पार्ट क्वांटिटी. मतलब क्वालिटी भी सेम रहेगा और क्वांटिटी का जो रेशियो रहेगा वो भी क्या रहेगा? Same. हाँ, देखो किसी को ये बात नहीं समझ में आया होगा. मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप ध्यान से हर लॉ को अच्छा से सुनिए. जैसे वाटर है तो इस लॉ के हिसाब से बोल रहा है कि उसका जो क्वालिटी वाला कंपोजिशन है, क्वालिटी का मतलब कौन कौन से एलिमेंट से बना है, तो क्वालिटी का कंपोजिशन भी सेम रहेगा और उसका जो क्वांटिटी का जो कंपोजिशन है वो भी सेम रहेगा. समझ में आई बात? Same रहेगा. Yes, sir. तो क्वालिटी का कंपोजिशन क्या था? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और क्वांटिटी का रेशियो क्या था? तो क्वांटिटी का रेशियो आप देख लो. H2O में हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? 2. और ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? 16. समझ रहे? वेट. Yes, sir. तो अगर हम इसको सिंपल करेंगे तो 1:8 आ रहा है कि नहीं रेशियो? Yes. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वेट का रेशियो.
समझ में आई बात? Yes, sir. ओके हेलो हाँ मैम, रिगार्डिंग इंश्योरेंस मैम, आई विल कॉल यू लेटर, राइट नाउ क्लास 5 मैम, यू डोंट कॉल मी, आई विल कॉल यू, ओके राइट। भाई किसी को इंश्योरेंस कराना है? नहीं सर। तो अब देखिए, तो हाँ मैं ये बस यही चीज कहा गया भाई कि एलिमेंट भी सेम रहेगा और उसका जो वेट का कंपोजिशन रहेगा वो भी सेम रहेगा, मतलब क्वालिटी का कंपोजिशन भी सेम रहेगा और उसके जो अंदर में जो वेट का जो रेशियो वो भी सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में ऑक्सीजन ज्यादा है और वेस्ट इंडीज में ऑक्सीजन कम है, इसलिए अमेरिका में गोरे हैं और वेस्ट इंडीज में काले हैं। यस सर। समझ में आई बात? हाँ वहां सर। का भी पानी है, यहाँ का भी पानी है, इंडिया का भी पानी, जमीन का भी पानी, आसमान का भी पानी, कंटेनर का भी पानी, वहां का भी पानी, कहीं का भी पानी में हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहेगा और उसका जो रेशियो रहेगा 1:8 रहेगा। और खाली एक कंपाउंड के लिए नहीं बोला, दुनिया के हर कंपाउंड के लिए ऐसा बोला गया, इसलिए इसको लॉ का उपाधि गया, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोजल। समझ में आई बात? हाँ सर। मतलब सोर्स उसका क्या है उससे कोई मतलब हमें, कितना जोर देके बोल रहा हूँ, आवाजें नहीं आया। यस सर। ये क्या बोल रहा है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोजल, कि अगर वो कंपाउंड सेम है, अगर वो कंपाउंड सेम है तो उसका हमेशा जो क्वालिटी और क्वांटिटी का जो Same कॉम्पोजिशन होगा। रहेगा वो सेम रहेगा। और Yes, इस बात sir. का फर्क नहीं पड़ता कि Yes, सोर्स क्या था, उसका का सोर्स क्या था। One. वन था, क्या बोल रही है? वन कहां से आया आंसर? बेटा कौन बोला वन बीच में? ठीक है, बढ़े आगे। ये लॉ समझ में आया बेटा? Yes, sir. चलो इसको लिखा दे क्या अच्छी तरीके से? हाँ सर। चलो लिखो, लो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, तब तक मैं इसको यहाँ से मिटा भी देता हूँ। आज धूप नहीं है। मेरा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा ये वाला लॉ क्यों देना पड़ा बेटा? Why they have means the scientist gave this law? What was the necessity? There might be some confusion in the society. सर ताकि स्टैंडर्डाइज हो सके सर। हाँ, कोई कहीं ना कहीं तो कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा तभी लॉ दिया गया होगा। सो द कंफ्यूजन, एक एग्जांपल दिया ना मैंने, जैसे कभी कभी हाँ जो सराउंडिंग्स होता है उसका भी फर्क पड़ता है करके। यस सर। तो फर्क पड़ता होगा, लेकिन केमिस्ट्री में फर्क कंपाउंड में नहीं पड़ता, और कोई चीज में पड़ता होगा। समझ में आई बात? हाँ सर। तो फर्क पड़ता तो है। अगल बगल का देखो, अब चाइना का लोग थोड़ा सा दिखने में कुछ अलग होता है, अमेरिकन थोड़ा देख के पता कर सकते हो, वेस्ट इंडीज को देख के पता कर सकते हो। समझ गए बात को? हाँ सर। तो इस तरह से फर्क पड़ता है। तो कोई चीज में फर्क पड़ता होगा, लेकिन केमिस्ट्री में फर्क नहीं पड़ता है, कंपाउंड के लिए नहीं फर्क पड़ता है। लिख लो बेटा। पहले तो इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट, वहां पर डेफिनेट लिखा हुआ था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोजन भी कहते हैं इसको, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोजन भी कहते हैं। तो ये दोनों लॉ एक ही है। मत देख रहे हैं, एक ही चीज के लिए कितना सेंटेंस इस्तेमाल कर लेता है। क्या दरकार था फिर? या तो डेफिनाइट बोल दो, नहीं तो कांस्टेंट बोल दो। समझ में आई बात? लेकिन है वो लोग करेंगे ऐसा, क्या करेंगे? इसी के साथ जीना है हमें। हाँ, इसी के साथ जीना है यार, इसी से पढ़ना है हमें। तो लिखो, ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन, a given compound always contains
always contains the same elements always contain the same element. देखिए सेम एलिमेंट बोल करके क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन देख रहा है या क्वालिटी का इंफॉर्मेशन दे रहा है? क्वालिटी सेम एलिमेंट्स ओके combined in a fixed proportion by weight, combined in a fixed proportion by weight. समझ में आई बात? हाँ सर। ओके और मैंने तो एक एग्जांपल वो सब दिया था, अब मैं इसका साइंटिफिक एग्जांपल देने जा रहा हूँ। मतलब कि इससे एक्चुअल में क्या होता मालूम है? तब मैंने इजी वे से बताया कि लोग बाग परेशान थे कि हो सकता आम अलग अलग टाइप का अलग हो तो कंपाउंड भी अलग अलग हो, ऐसा नहीं है। तो इसको दिया गया था इसलिए कि एक प्रॉपर कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन इजीली हो सके। समझ गए? हेलो? Yes sir. We can identify a compound properly, that yes, this compound is that one only. So it will help Yes, you to sir. identify a compound. तो समझ गए? जैसे मान लेते कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ और क्राइम हुआ, तो बॉडी के अंदर से कोई पॉइजन निकाला, वो पॉइजन का फिर उसका जो कंपाउंड उसका प्रोपोर्शन निकाला, वो प्रोपोर्शन का Yes. रेशो निकाल के दिखाया। तो अब जैसी वो रेशो निकला तो पता चल गया कि ये रेशो तो फलाने पॉइजन का है। समझ में आई बात? हाँ सर। तो इस तरह से वो यूज होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ आप आगे जा करके चाहे कुछ भी बनो, कोई भी आपको प्रोफेशन चुनना है, लेकिन अगर आपको केमिस्ट्री का नॉलेज अच्छा सा है, उसका अगर आपको यूज करना है तो अच्छे ढंग से पढ़ो, इसको एंजॉय करो। आपका करियर बनाने के लिए ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ये नहीं बोलते खाली डॉक्टर Yes, बनो sir. या खाली इंजीनियर बनो, जो भी बनो, लेकिन आपके पास सब्जेक्ट डेप्थ होना चाहिए और उसको फर्दर यूज करना चाहिए। और अगर अच्छा सब्जेक्ट आपका होगा तो आपका वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो आपके पास में मतलब गजब से नहीं होता है सब्जेक्ट, मैं बता रहा हूँ। इट्स मतलब एक बहुत बड़ा तपस्या है ये, तभी जाकर के आपको एकदम अच्छा सब्जेक्ट मिलेगा। नहीं तो आप भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे और फिर उस लाइफ नॉर्मल टाइप का लाइफ होगा। और अच्छा से अगर जीना है एकदम मजेदार जिंदगी, वैल्यूबल जिंदगी, तो आपको अपना सब्जेक्ट स्ट्रांग रखना पड़ेगा। तो चलिए हमने ये देखो ये जो लाइन लिखा गया है, ये वाला जो लाइन लिखा गया है, यही Yes. चीज देखो मैंने अपने इसमें कितने अच्छी तरीके से बता दिया है। समझ गए बात को? हाँ सर। कंपोजिशन भी सेम रहता है और वो जो कंपोजिशन का जो वेट का भी कंपोजिशन रहता है, मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज सेम रहता है। Yes. हाँ, पहला बात तो हम Same लोग रहता है। कंफर्म हो जाते हैं कि एलिमेंट भी सेम रहता है, और वो जो एलिमेंट है इतना ही नहीं, उनका जो वेट का जो रेशो होता है वो भी सेम रहता है। वो भी सेम रहता है। हाँ, और ये हम लोग यूज करेंगे, पहले लिख लो, इसको हम लोग यूज करेंगे। I don't know why I'm facing this one. सर रफ नहीं हो रहा है। हाँ, इरेज नहीं हो रहा। कुछ खराबी है। I don't know why, some either battery problem in this digital pen or something is wrong. That's why I'm not getting enough space. Anyhow, just see.
चलिए एटलीस्ट डू वन थिंग, यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। चलो कार्बन डाइऑक्साइड का हमको रेशो निकाल के दो जल्दी से। कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का और ऑक्सीजन का क्या रेशो होगा पता करके दिखाओ जल्दी से। तब मैं इसको इरेज करने की कोशिश करता हूँ। बेटा स्नेहा, मैं इसीलिए अपना वेट नहीं यूज करके मैं मास यूज करता हूँ। ओके बेटा स्नेहा, जब इस तरह का प्रॉब्लम हो ना कि आप अर्थ में नहीं काम करो, कहीं मून पे जाओ, मंगल ग्रह पे जाओ, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ वेट की जगह क्या इस्तेमाल करो, मास। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। स्नेहा, स्नेहा कहाँ पर है? स्नेहा रेस्पॉन्ड। स्नेहा, स्नेहा से बात कर ही लेने दो मेरे को आज, स्नेहा से। अरे स्नेहा बाबा, स्नेहा मंडल, स्नेहा दास, स्नेहा सिकदर, सब स्नेहा को मैं सब अनम्यूट करूंगा। ऑल स्नेहास आर, हेलो बेटा, सब स्नेहा से बात हो रही है मेरी? हेलो स्नेहा, ओके मैंने अनम्यूट कर दिया बेटा, आप एकदम आराम से बात करो हमसे। मैंने ये वेट इसलिए दिया, मैं सोचा कि आप जमीन में रह के बात करोगे, मतलब अर्थ में रह करके। ठीक है बेटा, मैंने अर्थ के लिए बात किया था, मुझे नहीं मालूम था कि आप चंद्रमा में जाकर के वेट वूट करोगे, इसीलिए मैंने चलो हटा दिया, मैंने माफी मांग ली। लिखो मास, लिखो आप जाओ, इसीलिए ठीक है बेटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए मैं बार बार मास बोलते रहता था, फिक्स प्रपोजन बाय मास। देखिए इसीलिए ये सब बेचारे साइंटिस्ट लोग को कंफ्यूजन हुआ था। तो पहले जो कंफ्यूजन हुआ था, पानी कहाँ से लेके आया था, यही अराउंड अर्थ था। अब बताओ इमेजिनरी से देखो, वाटर कहाँ से लाने का प्रोग्राम बन रहा है, मून से, मंगल ग्रह से। तो अब बोल रहा हूँ वहां ग्रेविटेशनल फोर्स अलग हो गया तो वेट अलग हो गया, इसीलिए क्या ले लिया मैंने, मास। अब करो, अब बदमाशी करो, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाओ, मास तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। कितना आया इसका? कार्बन का वेट कितना होता है, 12, ऑक्सीजन का कितना है, 32, तो 12:32 इज द रेशियो। अगर इसको और सिंप्लीफाई में लिख सकते हो तो लिखो, लिख सकते हैं क्या, 4 का 4, 4 दूना 8, 4 दिए 12, दिया 3। Okay, those who don't understand Hindi, please let me know, okay, so that I can give the same everything information in language also, English language. I really love, have a more interest in speaking in English only. Okay, but I think that many of the people are in coming time I will purely in English only, purely. Okay, but जब तक केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आता, मैं तब तक, मेरा मेन मोटो है केमिस्ट्री पढ़ाना। ओके, मुझे ये नहीं दिखाना। 8 ना पक्का, 4 8 32। यस सर। ओके, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? 8 और करें सिंप्लीफाई? नो सर, नहीं होगा ना। और नहीं होगा, रेशो तो मिल जाएगा लेकिन सिंपल रेशो नहीं मिलेगा। यस सर। तो 3:8 है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड चाहे आप कहीं से भी लेके आओ, कहीं से भी, चाहे हाँ कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो, या कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जला के कार्बन डाइऑक्साइड लाओ, या और कहीं से भी, या और कहीं से भी, चाहे H3CO3 कार्बोनिक एसिड को डिकम्पोज करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो उसका रेशियो 3:8 रहेगा। समझ में आई बात? यस सर। हाँ, तो जो इंटरनेशनल IUPAC है ना, IUPAC, उस IUPAC में कार्बन डाइऑक्साइड लिख करके मालूम है वहां पर 3:8 रेशो लिखा हुआ है अभी वहां, और उसको ना सील मार दिया गया है कि यही रेशो रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का।
तो अगर किसी के बॉडी में ऑपरेशन करके मान लेते कोई कंपाउंड निकला और उसमें पता चला कि उसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, और फिर बाद में उसका जो रेशियो है वो 3:8 निकला, तो 100% वो क्या चीज था? करेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आई बात? हाँ सर। इसलिए रेशियो लिखा जाता है। तो ये IUPAC में हर कंपाउंड का रेशियो लिखा हुआ है, एलिमेंट का और कंपाउंड का। यस सर। बेटा कितना बज गया? सर 10:50। 10:15 ना? 10:50 50। 50। यस। Sir, today doubt class is there. Yes, yes. Sir, in doubt class you will fulfill all notes. Means Yes, we'll continue. We'll continue. Okay. okay sir. Oh, it's 50 already, na? Yes sir. 10:50. So okay. Let me stop here only. We'll continue in next class. Okay. Please Okay, do sir. everybody. For everybody. I am telling you. Please don't miss the. Actually, it is not a doubt clearance classes. Okay. We complete 1 or 2 doubt. When nobody has doubt, we continue the class also. Okay. Okay sir. So never try to miss any class. Till then, have a nice day. If it is Bye sir. serious. Bye, sir. Hello. Hello. One sitting. Yes, ma'am.